Good morning, my dear lovely students. Myself, Dr. Girish Goyal, Assistant Professor, Department of Agronomy, School of Agriculture, IT University, Gwalior. Students, today I am going to start our subject Principle and Practices of Water Management, first semester, MSc Soil Science and Agriculture Chemistry. Students, I hope you all are good and stay at home safely. मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे. So students, so let's just start our topic about transpiration. I will introduce all content one by one. And first content, introduction. Second, overview of transpiration. Next, transpiration. Next, how transpiration work. Next, types of transpiration. Then references. Okay. So students, before starting the topic, I want to tell you about some general information of transpiration. Students, water is absorbed by plant roots from soil and flows upstream the levels. Transpiration occurs when water vapor flows from levels into atmosphere. Water absorbed from the soil flowering upstream carries nutrients essential for plant growth. The sun is the driving force for transpiration. So this is general information of transpiration. And first content is students. Next, introduction of transpiration. Okay. So students, transpiration. Students, transpiration is the process of water movement through a plant and its evaporation from real parts and parts such as leaves, stem and flowers. Water is necessary for plants, but only a small amount of water taken up by the roots is used for growth and metabolism. The remaining 97 say 95 99.5 is lost by transpiration. Students, transpiration. Transpiration is an important part of the water cycle, a large propagation for rain and filling and land is transpirated. Okay, so by plant back into the atmosphere. Students, in natural, in nature, bushland, Sydney, most rainfall entire in the sum and 60% of the total rainfall return into the atmosphere by plant transpiration. In the summers there are not as many trees and only 10% of rainfall is transpired into the air and most rainland or straight and horse then flow and simply down waters. Students, in Sydney a large gum trees transpiration up to 200 liters of water a day. A well-maintained garden in Sydney will transfer nearly twice the volume of water as the total rainfall. स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन. स्टूडेंट्स, वाष्पोत्सर्जन एक पौधों के माध्यम से पानी के आवागमन की प्रक्रिया है और इसके तत्वों तनों और फूलों जैसे हवाई भागों से वाष्पीकरण होता है. स्टूडेंट्स, पौधों के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है, लेकिन जड़ों द्वारा लिए गए पानी की थोड़ी मात्रा का उपयोग विकास के लिए किया जाता है. शेष रिमेनिंग जो 97 से 99.5% वाष्पोत्सर्जन द्वारा खो जाता है, यानी लॉस हो जाता है. स्टूडेंट्स, पानी मिट्टी से पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित होता है और पत्तियों तक उपजी हो जाती है. स्टूडेंट्स, वाष्पोत्सर्जन तब होता है जब जब जल वाष्प पत्तियों में प्रवाहमापी में बह जाती है. मिट्टी से अपशिष्ट पानी उठती बहती है
पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का वहन करती है और सूर्य बाष्पोत्सर्जन के लिए एक प्रेरक शक्तिशाली है। स्टूडेंट्स, बाष्पोत्सर्जन जल चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो भूमि पर गिरने वाली वर्षा का एक बड़ा हिस्सा पौधा द्वारा वायुमंडल में वापस भेज दिया जाता है। स्टूडेंट्स, सिडनी के आसपास, सिडनी एक देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी के आसपास के प्राकृतिक झाड़ियों में अधिकांश वर्षा मिट्टी में प्रवेश करती है और कुल वर्षा का 60% या 60% हिस्सा पौधों के बाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल में वापस आ जाता है, आ जाती है। उपनगरों में उतने पेड़ नहीं हैं और केवल 10% वर्षा हवा में स्थानांतरित हो जाती है और सड़कों और घरों पर अधिकांश वर्षा भूमि फिर तेज़ी से नाले में गिरती है, बहती है। स्टूडेंट्स, सिडनी में एक बड़ा गम का पेड़ एक दिन में 200 लीटर पानी तक पहुंचाता है। सिडनी में एक अच्छी तरह से बनाए रखा उद्यान कुल वर्षा के रूप में पानी की मात्रा के लगभग दोगुना हो गया है। सो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन का अवलोकन। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, वाटर इज इजिबली ट्रांसपोर्टेड into the roots and then into the xylem. The force of chosen aid and the agent causes the water molecules to form a column in the xylem. Students, water moves from the xylem into the and mucil cell evaporates from their surface and leaves the plant by diffusion throughout the stomata. Students, वाष्पोत्सर्जन का अवलोकन। स्टूडेंट्स, पानी निष्क्रिय रूप से जड़ों में और फिर जाइलम में ले जाया जाता है। स्टूडेंट्स, सामंजस्य और असमंजन की शक्तियाँ जल के अणुओं को जाइलम में एक स्तंभ बनाने का कारण बनती हैं। जाइलम से मेसोफिल कोशिकाओं में पानी जाता है, उनकी सतहों से बाष्पीकरण होता है और रंध्र के माध्यम से विषण द्वारा पौधों को छोड़ देता है। ठीक है, सो दिस इज ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट कंटेंट है स्टूडेंट्स ट्रांसपिरेशन। ओके, आइए देखते हैं ट्रांसपिरेशन। स्टूडेंट्स, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट and thought a plant and its evaporation from aerial parts, such as the level stem flow water necessary for plants, but only a small amount of water taken up the root used for growth and metabolism. The remaining 97 से 99.5 it's lost only transpiration. Students, transpiration means to and perspire and is common within plant. This is loss of water vapor through leaves and or stem. Students, most transpiration occurs through the stomata. Why do plant losses such large and quantities of water to transpiration? Students, let's us look again at the function of the leaf. The chief function of the leaf for photosynthesis, which is the source of all food for the entire plant body. The necessary energy of photosynthesis comes from sunlight. Therefore, for a maximum amount of photosynthesis to occur, a plant must have a maximum amount of surface area able to reach the sunlight. Students, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, ओके, ट्रांसपिरेशन के बारे में। ओके, सो दिस इज ट्रांसपिरेशन। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हाउ ट्रांसपिरेशन वर्क, कैसे ये वर्क करता है, क्या ट्रांसपिरेशन। ओके, आइए हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रांसपिरेशन इज द फ्लो ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम levels into atmospheric. Students, the driving force of transpiration radiation from the sun heating in entire of leaves. Students,
Evaporation occurs at the surface of cells and water vapor flow through stomatids into the dry atmosphere. Students, the loss of water at the leaf surface creates a suction pulling water up to toward the xylem. Tube in the stem and roots and water is sucked out of the soil through root, hair, water movement. By transpiration pull is assisted by stomatic pressure and capillary rise. Students, the major the major factor affecting the rate of transpiration is the state of solar radiation. The presence is the available soil water transpiration is great in the middle of the day when students maximum solar radiation occurs and nearly cases during in middle of the night. Students, the rate of transpiration increase by wind low and relative humid and low atmospheric pressure. Students, there need to sufficient available soil water for transpiration. Where water shortage occurs, leaves will drop and wilting occurs. Students, normally transpiration cannot exit evaporation and under ideal icons transpiration may be reached 95% of evaporation. In the middle of winter transpiration from and the resulted trees when they have lost their leaves in is less than 15% of evaporation. So students, जैसा कि बताया हाउ ट्रांसपिरेशन वर्क्स, ये कैसे वर्क करता है। स्टूडेंट्स, वाष्पोत्सर्जन वायुमंडल में पत्तियों से जल वाष्प का एक प्रवाह है। स्टूडेंट्स, वाष्पोत्सर्जन की प्रेरक शक्ति सूरज से विकिरण है जो पत्तियों की आंतरिक भाग को गर्म करता है। वाष्पीकरण कोशिकाओं की सतह पर होता है और वाष्प वायुमंडल में प्रवाहित होकर जल वाष्प बन जाता है। स्टूडेंट्स, पत्ती की सतह पर पानी की कमी स्टेम और जड़ों में जाइलम नालियों के माध्यम से एक सक्शन पुलिंग वाटर बनाती है और जड़ वाले के माध्यम से मिट्टी से पानी को चूसा जाता है। स्टूडेंट्स, वाष्पोत्सर्जन खींच द्वारा जल आंदोलन को ऑस्मोटिक दबाव और कोशिक वृद्धि द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। वाष्पोत्सर्जन की दर और प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक और विकिरण की शक्ति और उपलब्ध मिट्टी में पानी की उपस्थिति है। स्टूडेंट्स, वाष्पोत्सर्जन दिन के मध्य में सबसे बड़ा होता है जब अधिकतम और विकिरण होता है और रात के मध्य में लगभग बंद हो जाता है। स्टूडेंट्स, वाष्पोत्सर्जन की दर में हवाओं की वृद्धि, कम सापेक्ष आर्द्रता और कम वायुमंडलीय दबाव होता है। स्टूडेंट्स, वाष्पोत्सर्जन प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को खुले पेट के माध्यम से प्रवेश करने और ऑक्सीजन को बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। जल वाष्प की वातावरण में खुले पेट के माध्यम से बहती है और मुख्य रूप से निचली पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे श्वास छिद्र और पौधे के पेट को खोलने और बंद करके वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी को नुकसान और नियंत्रण करते हैं। स्टूडेंट्स, सो दिस इज किस तरह ये वर्क करता है, जैसा कि हमने भी देखा। ओके, एंड हाउ ट्रांसपिरेशन ऑफ वर्क्स। ओके, सो नेक्स्ट कंटेंट है टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। ओके, कौन कौन से टाइप से, आइए हम इसको देखते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू फोलियर एज surface of the leaves. Students, it is known as foliar transpiration. Foliar transpiration accounts for over 90% of the total transpiration.
young stem, flowers, fruit, etc. Also, also and transpire a lot. Mature stem transpire very little transpiration from stem scale and killing transpiration. Students, depending upon the plant surface, transpiration is of the flowering flowering four types: stomatal and cuticular and lenticular and bark. Okay. सो स्टूडेंट्स, अधिकांश वाष्पोत्सर्जन पत्तियों की सतह या सतह के माध्यम से होता है। इसे वर्ण वाष्पोत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। कुल संकरिता का 90% या 90% से अधिक हिस्सा फ्लोरियल वाष्पोत्सर्जन होता है। स्टूडेंट्स, तना, फूल, फल इत्यादि की बहुत अधिक स्थानांतरित करते हैं। परिपक्व तने बहुत कम फैलते हैं। तनों से वाष्पोत्सर्जन को कैप्रोन वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पौधे की सतह के वाष्पोत्सर्जन के आधार पर निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं: स्टोमेटल एंड क्यूटिकल एंड लेंटिक्यूलर और वार्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ओके, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। So students, it is the most important type of transpiration and stomatal transpiration. Constitute to about 50 से 97% of the total transpiration. It occurs through stomata. The stomata are found mostly on the leaves. A few of them occur on the young stem, flower, and fruit. Water vapor therefore pass outwardly through stomata by diffusion. More water evaporates from the internal cell. The replace the outgoing water vapor. The stomatal transpiration continue. It will till that stomata are kept one. ओके स्टूडेंट्स, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का वाष्पोत्सर्जन है। मेटोटल एंड ट्रांसपिरेशन कुल ट्रांसपिरेशन का लगभग 50 से 97% होता है। ये रंध्र के माध्यम से होता है। रंध्र ज़्यादातर पत्तियों पर पाए जाते हैं। उनमें से कुछ युवा तनों, फूलों और फलों पर होता है। इसलिए पानी के वाष्प विसरण द्वारा स्टोमेटा से बाहर की ओर निकलने में स्टूडेंट्स, निर्मतमान जल वर्षाओं के बदलने के लिए आंतरिक कोशिकाओं से अधिक पानी वाष्पित हो जाता है। स्टोमेट वाष्पोत्सर्जन तब तक जारी रहता है जब तक रंध्र खुले नहीं रहते हैं। सो दिस इज ए स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ओके, नेक्स्ट है क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन। ओके, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन। स्टूडेंट्स, इट occurs through the cuticle or epidermal cell of the leaves and other exposed parts of the plant. Students, each common land plants in cuticular transpiration is only 3 से 10% of the total transpiration. In herbaceous shade and living plant where the cuticle is very thin, the cuticular transpiration may be up to 50% of the total. Students, cuticular transpiration continues throughout day and night. Students, ये पत्तियों में छल्ली या एपिडर्मल कोशिकाओं और पौधों की अन्य उजागर भागों के माध्यम से होता है। सामान्य भूमि के पौधों में त्वचीय वाष्पोत्सर्जन कुल वाष्पोत्सर्जन का केवल 3 से 10% है। हर्बेसिस सेट के मतलब जो उसमें एक दूसरे के साथ पौधों में जहाँ छल्ली बहुत पतली होती है, यहाँ क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन कुल का भाग लगभग 50% तक होता है, हो सकता है, या क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन के पूरे दिन और रात में जारी हो सकता है। सो दिस इज ए क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लेंटिकुलर एंड लेंटिकुलेट ट्रांसपिरेशन।
Okay, so students, it is found only in the woody branches of the trees where lenticels occur. The lenticular transpiration is only 0.1% of the total transpiration. It, however, continues day and night, and because lentils have on no mechanism of closure. Students, the lenticle contain the atmospheric air with the and cortical tissue of the stem, and third the intercalary space present most of the and complementary cell. स्टूडेंट्स, ये केवल उन वृक्षों को लकड़ी की शाखाओं में पाया जाता है जहाँ पर दाल मिलती है। स्टूडेंट्स, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन का कुल ट्रांसपिरेशन का केवल 0.1% है। हालांकि यह दिन और रात जारी रहता है क्योंकि दाल में बंद होने का कोई तंत्र नहीं है। लेंटिकुलस वायुमंडलीय हवा को पूरक कोशिकाओं के बीच मौजूद अंतर कोशिकाओं स्थानों के माध्यम से स्टेम और कार्टिकल ऊतक के साथ जोड़ते हैं। सो दिस इज लेंटिकुलर और लेंटिकुलेट ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स बार्क ट्रांसपिरेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, this type of transpiration occurs through quickly offering of the stems. Bark transpiration is very little but is measured rate is often more than a lenticular transpiration due to large area. Students, like a cuticular and a lenticular types of transpiration, bark transpiration occur continuously during day and night. स्टूडेंट्स, इस तरह का वाष्पोत्सर्जन तनों के कार्क और कर्बरी के माध्यम से होता है। स्टूडेंट, वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है लेकिन इसकी मापित दर अक्सर बड़े क्षेत्र के कारण लेंटिकुलर वाष्पोत्सर्जन से अधिक होती है। स्टूडेंट्स, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन और द लेंटिकुलर प्रकार की वाष्पोत्सर्जन की तरह छाल वाष्पोत्सर्जन दिन और रात के दौरान लगातार होता रहता है। सो दिस इज बार्क ट्रांसपिरेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज रेफरेंसेस एंड दिस टॉपिक इज फिनिश। ओके, सो दिस टॉपिक इज फिनिश ट्रांसपिरेशन। ओके, सो आज हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन, ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, हाउ ट्रांसपिरेशन वर्क्स एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन, इन पे हम लोगों ने आज आपको कुछ बताया। इस पे हमारा लेक्चर था। सो स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज़ फिनिश एंड ट्रांसपिरेशन। ओके, आई होप आप इसे अच्छे से मेरा लेक्चर सुनेंगे ताकि वेबिनार में इसको अच्छे से पढ़ के आए। आपकी कमांड हो, कोई डाउट हो तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकें। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज़ फिनिश ट्रांसपिरेशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।